دنیا میں کسی مذہب نے پاکی صفائی کی اتنی تعلیم نہیں دی جتنے شریعت اسلامیہ نے دی ہے. ایک مثال دے کے بات آگے ختم کر کے پھر انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا. ایک ہے نماز. کتنی پاکی صفائی چاہیے. دنیا کی کسی مذہب کی عبادت میں, بنیادی عبادت میں آپ دکھا دیجئے, نماز کے لیے سب سے پہلے ہمارا دل و دماغ پاک ہو. کس سے؟ شرک, بدعت, خرافانی, ریاکاری, ہے نا, ریاکاری سے پاک ہو. پھر اس کے بعد ہمارا جسم پاک ہو. جسم نجاست سے, گندگی سے, حدث اکبر حدث اصغر سے پاک ہو. پیشاب پاخانہ اور جنابت سے پاک ہو. کپڑا پاک ہو, کپڑا پاک ہو. پھر وہ جگہ پاک ہو. اللہ اکبر. اتنی پاکی کے باوجود وضو نہیں کیے, نماز ہوگی؟ پھر وضو بنانا پڑے گا. اللہ اکبر, سبحان اللہ بحمدہ. دنیا کے کسی مذہب کی عبادت میں دکھا دیجیے اتنی پاکی صفائی کا اہتمام ہوتا ہے کہ نماز کے لیے آپ کو کتنی پاکی صفائی کا اہتمام. ان میں سے ایک چیز ناپاک ہو, آپ کی نماز نہیں ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حضرین گرامی, قبر کے 3 سوالات کی وضاحت کے تعلق سے ہم نے اب تک یہ معلوم کیے کہ من ربک, تمہارا رب کون ہے؟ اس کا جواب ہے ربی اللہ, ہمارا رب اللہ ہے. تو اللہ ہی کیوں رب اور اللہ کی ہی عبادت کیوں؟ اس تعلق سے ہم نے گزشتہ دروس میں معلوم کیے ہیں. اس کے بعد دین اسلام کے تعلق سے سوال ہوگا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ تو دین کے تعلق سے جواب جو صحیح ہے وہ یہ کہ دینی الاسلام, میرا دین دین اسلام ہے. تو اسلام ہی کیوں آخری اور اللہ کے پاس قابل قبول دین ہے, اور اسلام پر ہی عمل کیوں ہونا ہے, کیوں کرنا ہے؟ اس تعلق سے ہم نے کل معلوم کی. آج ہم معلوم کریں گے آخری سوال نبی کے تعلق سے کہ وہ جو تمہارے درمیان بھیجے گئے کون ہے, یا تمہارے نبی کون ہے, تمہارے رسول کون ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج سے ہم لوگ معلوم کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کیوں ہونی چاہیے. آپ کی عظمت, آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو 2 باتوں کو بنیاد بنا کر میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا. پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آج تک روئے زمین پر کوئی انسان پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی قیامت کی صبح تک پیدا ہوگا. آپ خیر البشر ہیں, انسانوں میں سب سے افضل ہیں, بیسٹ ہیں, خیر ہیں. کس اعتبار سے خیر ہیں؟ ہر اعتبار سے, ہر ناحیے سے, ہر اینگل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
خیر ہیں، بیسٹ ہیں، افضل ہیں. چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نسب کے اعتبار سے ہو، آپ جس خاندانی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہ خاندان روئے زمین میں سب سے افضل ہے، سب سے بیسٹ ہے، خیر ہے. آپ نجیب الطرفین ہیں، چاہے آپ کے ددیال کی بات ہو یا ننیال کی بات ہو، دونوں طرف سے آپ بہت ہی شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ خیر ہیں، افضل ہیں انسان ہونے کی حیثیت سے. آپ خیر ہیں، افضل ہیں آپ کے اخلاق و کردار کے اعتبار سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہیں، افضل ہیں آپ کی تعلیمات اور فرمودات کے اعتبار سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہیں، افضل ہیں، بہتر ہے، بیسٹ ہے تمام نبیوں کے اعتبار سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، خیر ہیں، بہتر ہے، بیسٹ ہے ایک رول ماڈل کے اعتبار سے، ایک ٹیچر اور ایک رہنما، ایک قائد اور ایک لیڈر کے اعتبار سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہیں، بیسٹ ہیں آپ کی طرح کوئی نہیں ہے. مختصر وقت میں آپ نے جو رزلٹ لایا ہے، 23 سالہ مدت میں آپ نے 1,24,000 صحابہ کرام جو ایک جگہ پر اپنی جگہ پر ایک عظیم ہستی ہے روئے زمین میں، کسی ایک لیڈر، رہنما، قائد کو دکھا دیجئے 23 سال میں انہوں نے 1,24,000 اپنے بعد قائدین، لیڈران، بہترین سرماؤں کو چھوڑا ہے. اور میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں، آپ سوچتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، فہرست بناتے جاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے خیر ہیں، افضل ہیں. آج تک کوئی انسان آپ کی طرح پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی قیامت کی صبح تک پیدا ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے آپ کا یہ اونچا جو مقام و مرتبہ ہے، آپ کی یہ عظمت ہے، آپ کا یہ مقام ہے، تو آپ کو سب سے اونچا مقام ملنا ہے، اور یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ نے فرمایا، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے ایک لخت رحمت بنا کر بھیجا ہے، سارے جہاں کے لیے. اللہ کے تعلق سے اللہ نے اپنے تعارف میں، اپنے انٹروڈکشن میں یہ فرمایا، قرآن مجید کی پہلی آیت ہے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع. یہ جو کلام ہے اللہ کے نام کے ساتھ شروع. اور میں نے اسلام پر عمل اور آخری شریعت پہ عمل کیوں ہونا ہے تو قرآن کے تعلق سے بتایا کہ اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے لا ریب فیہ، کسی کتاب کے شروع میں نہیں ہے، بات گزر چکی ہے. اور اس کے شروع پہلی آیت میں کہا کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع. اللہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم ہے. اللہ رب العالمین ہے. اللہ رحمتوں والا ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اللہ نے آخری نبی کے تعلق سے بھی وہی بات فرمائی اور کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ تعالی رب العالمین ہے تو نبی رحمت للعالمین ہے. عالم کیا ہے؟ میں نے اس وقت بھی عرض کیا کہ عالم
अलग अलग जेंडर और जिन्स को भी कहा जाता है। जैसे इंसान एक जिन्स और जेंडर है, हैवानात एक अलग जिन्स और जेंडर है, ऐसे ही मर्द है, औरतें हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, हजर शजर, चरिंदे परिंदे, दरिंदे, फिजा, कायनात, पहाड़, तालाब, नदियां, जो कुछ भी हैं, इन सब की अलग अलग दुनिया है। और शायर की ज़बानी, सितारों से आगे जहां और भी हैं, कितने जहां हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जहां के लिए, हर एक के लिए रहमत हैं। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी बात है। किसी के ताल्लुक से अल्लाह ने नहीं फरमाया, किसी नबी के ताल्लुक से भी अल्लाह ने नहीं कहा। तो जाहिर सी बात है, आखिरी और फाइनल जो आखिरी नबी है उनके ताल्लुक से अल्लाह ने जो बात कही, अब इनको हक है कि दूसरों से हट के इनके साथ सलूक होना चाहिए, यानी इत्तिबा और इताअत के बारे में। ईमान तो सारे नबियों पर होगा, लेकिन अमल आखिरी नबी पर। यह भी इंशाअल्लाह ये दूसरी मेरी बुनियाद होगी। पहली बुनियाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल बशर हैं। किस किस एतबार से खैर हैं, ये आपकी तरह दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, ये मेरी पहली बुनियाद है। और दूसरी बुनियाद यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही इताअत क्यों, आपकी इताअत ही क्यों, और कब्र में आपके ताल्लुक से ही क्यों सवाल होगा। इन दो बातों को बुनियाद बनाकर, महवर बनाकर मैं इंशाअल्लाह बातों को आगे बढ़ाऊंगा। आज मैं आपके सामने पहली बुनियाद पे बात करूंगा, और वो है आप खैरुल बशर हैं, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप अफजलुल अंबिया हैं। हर एतबार से आप अफजल हैं, खैर हैं, बेस्ट हैं, रहमत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के लिए रहमत, इंसान, जन्नात, हैवानात, चरिंदे परिंदे, दरिंदे, फिजा, कायनात, हजर शजर, पहाड़, नदियां, तालाब, आसमान, जमीन, सारी मखलूकात, सारे आलम, अपने पराए, दोस्त, दुश्मन के लिए भी आप रहमत। एक बहुत बड़ा गैर मुस्लिम मुसन्निफ लिखता है कि कितने ऐसे मुसन्निफीन हैं जिन्होंने बहुत सारों के बारे में किताबें लिखी हैं, मगर मशहूर नहीं हुआ। शोहरत कब मिली? जब उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा। माइकल हार्ट, जिन्होंने द 100 लिखा है, किताब द 100, दुनिया के 100 बड़े बड़े हस्तियों के बारे में लिखा है। उसके बाद और वो कोई मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है। उसने कहा मैंने बहुत सोचा किसका नाम पहले रखूं, तो मेरा ज़मीर गवारा नहीं किया। हाँ, ये फितरत की आवाज है, ये फितरत की आवाज है। अगर फितरत को जाहिरी आलाइशों से, जाहिरी दबाव से, जाहिरी उसकी गंदगी और जाहिरी जो अदरान है उनसे दूर रखा जाए, ये फितरत की आवाज है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। उसने कहा कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं किया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और को सबसे पहले अपनी किताब में जगह दूं, क्योंकि आपकी खिदमत, आपके जो कारनामे, आपकी जो बातें, आपकी अखलाक, किरदार, हुस्न, जमाल, सब एतबार से आप परफेक्ट हैं, और आपको यह हक पहुंचता कि आपका नाम पहले आए। अल्लाह अकबर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो हुई आपको चाहने वाले, वो लोग जो आपके खिलाफ भी लिखें, और आज तक भी किसी इंसान को शाइन होना है, किसी पॉलिटिशियन को वोट ज्यादा मिलना है, किसी आदमी को अपनी शोहरत को चमकाना है, कुछ भी करना है, वो क्या करता है? या तो नबी के बारे में लिखता है या नबी के खिलाफ में लिखता है। नबी के खिलाफ यानी नबी दुश्मनों के लिए भी रहमत है, और जो नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, इंशाअल्लाह ये भी बात याद आ गई, इसको भी हम तीसरी बुनियाद बनाकर आपके सामने बात अर्ज करूंगा। अल्लाह करे सारे चीजें कवर हो जाएं, क्योंकि आज नबी के खिलाफ
ऐसे प्रोपेगंडे नबी के बारे में, ऐसे ऐसी बातें, ऐसे ऐसे एतराजात होते हैं कि मुसलमान खुद परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और आके सवालात करते हैं कि भाई ये कैसे होता है, कैसे होता है। पिछले दिनों में आपको एक सवाल एक साहिब रमजान में ही आके किए और आप भी वक्ती तौर पर परेशान हो जाएंगे कि आपको ये पता नहीं है, गैर मुस्लिम स्टडी करके बताते हैं। ने कहा कि तुम्हारे नबी तो बहुत गंदे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। क्यों? कहा कि एक हदीस है, अबू दाऊद की सही हदीस है, बीर बुदाआ, बीर बुदाआ, बीर के माने कुआं और बुदाआ उसका नाम है। मदीने में एक बड़ा सा कुआं था, मदीने के निचले हिस्से में था वो। मदीना ऐसी आबादी है, आपने हदीस में सुना कि मदीने के अवाली से आए, ऊंचाई की तरफ से आए, तो ऐसा है। तो नीचे की तरफ एक बहुत बड़ा कुआं जिसका नाम बुदाआ। हदीस के अल्फाज हैं तुल्का, ये लफ्ज, और अल्लाह का करम है उनके सवाल से मुझे अपने पीएचडी का थोड़ा सा मवाद मिला, कुछ कंटेंट मिल गया है कि ग्रामेटिकल एतबार से कैसे इस्तेदलाल कर सकते, शरीयत को कैसे समझ सकते हैं। तुल्का एक लफ्ज है जिसको अरबिक ग्रामर के एतबार से मजहूल कहा जाता है। इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, ये पैसिव और एक्टिव होता है। हाँ, तो ये एक्टिव अलग है, पैसिव अलग है। एक्टिव में कोई जो करने वाला मालूम होता है और पैसिव में करने वाला मालूम नहीं होता, अंडरस्टूड है। मिसाल के तौर पर, हाँ, अब लिखा रहता है रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज डन हियर, है ना, मोबाइल रिचार्ज यहां किया जाता है। करने वाला कौन है? वो अंडरस्टूड है, दुकान वाला है ना। तो यहां पर करने वाला नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना दिया जाता है। क्या करता है करने वाला? दुकानदार। क्या करता? रिचार्ज। किसको? मोबाइल को। अब मोबाइल जो ऑब्जेक्ट था उसको शुरू में लाते हैं, मोबाइल रिचार्ज डन हियर। बस समझ में आ रही है? ऐसे ही होता है। तो अब जाहिर सी बात है, यहां पर हदीस में जो लफ्ज तुल्का, डाला जाता था, डाला जाता था, क्या है? कहा कि मदीने का कुआं है। थोड़ा सा लाइन चेंज कर रहा हूं लेकिन ये जरूरी बात भी है। मदीने का जो कुआं है, बड़ा सा कुआं, उसमें कहा कि हैज आलूद कपड़े डाले जाते थे। कौन डालते थे? नहीं है, हाँ, ये बात याद रखिए। कुत्ते दीगर जानवर मर जाते थे, वो भी उसमें डाले जाते थे। मदीने में जो कूड़ा करकट है वो भी डाले जाते थे। नबी से पूछा गया, क्या बीर बुदाआ के पानी से हम वुजू बनाए? नबी ने कहा कि हाँ जी, वुजू बनाओ, पाक है, गुस्ल भी करो, पियो भी। आपको कैसे लग रहा? अरे भाई, इतनी गंदगी डाले। अब जिसको बैकग्राउंड पता ना हो वो कहेगा तो कितना गंदा है ये। मुसनद अहमद की एक रिवायत है, मुसनद अहमद की रिवायत है, और आमतौर से मैं जब फिक्र पढ़ाता हूं तो कुल्ली हाजिरा में, हाजिरा जो 2 साल भी 3 साल कोर्स, उसमें इस चीज को मैं खुद क्रिएट करके बताता हूं। इस तरह के ऑब्जेक्शंस आते हैं, आपको ये जवाब याद रखना है। क्या है? मुसनद अहमद की एक रिवायत में, हदीस को दूसरे हदीस से समझना है। किसी भी चैप्टर के एक हदीस से सारी बातें जाहिर नहीं होती है। उस रिवायत में यह है, पूरी वजाहत। वो क्या है? मदीने के निचले हिस्से में वो कुआं है, और ऐसा नहीं कि लोग लाके उसमें डालते थे, ऐसा नहीं है, डाला जाता था, यानी ऐसे ही होता था। वो कैसे होता था? अब आइए आपको बताता हूं। उसमें वजाहत है कि सैलाब का पानी लाके उसमें डालता था। अब अरबों में बारिश कब होती है भाई? बहुत ज्यादा बारिश होती है? नहीं होती, कभी कभार बारिश होती है। हाँ, अब गांव देहातों में आज भी क्या होता है, कोई चीज, कोई जानवर मर गया, क्या करते हैं? ले जाके खुले मैदान में फेंक के आ जाते हैं। यहां तक के आज भी गांव देहातों में टॉयलेट नहीं है। हाँ, वो क्या बोलते हैं, चंबू है, नहीं, चंबू पकड़ के जाना पड़ता है, लेके जाते हैं, टॉयलेट करके आते हैं, है ना। उसके बाद देखिए, फिर ऐसा होता है
आपके घर के जो कूड़ा करकट है वो क्या करते हैं, खवातीन सब जमा करके रखते हैं, ले जाके गांव में किसी खुले जगह पर फेंक के आते हैं। वहां कोई म्युनिसिपैलिटी वाले तो नहीं है आके लेकर जाएंगे। हाँ, क्या करते हैं, हर चीज बाहर फेंक देते हैं, खुले मैदान में फेंक देते हैं। लेकिन वो उन चीजों से, उसके जरासीम से मुतासिर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? खुला मैदान है, धूप पड़ रही है, यहां सिटी की बात और है, खुला मैदान, धूप पड़ रही है, ये सारी गंदगियां सूख रही है, मिट्टी है, डायरेक्ट मिट्टी है, ऑब्जर्व कर रही है। आपको कहां मिट्टी मिलेगी भाई? आज सिटियों में हाल ये है, विटामिन डी की कमी है, आंखों के प्रॉब्लम ज्यादा है। क्यों? आपको ना जमीन से, जमीन के रस से मिल रही है। डायरेक्ट जमीन पे कौन चलते भाई? नहीं, चल ही नहीं पाते हम। विटामिन डी की कमी है, धूप नहीं मिल पाती है। वहां क्या है, जमीन ऑब्जर्व कर रही है और ऊपर से धूप है। ये होते होते ये सब गंदगियां सूख जाती कि नहीं सूखती है? सूख जाती है। ऑब्जर्व करने के बाद जमीन के हवा और रोशनी, धूप तेज की वजह से सारे खत्म हो जाते हैं। अब उसके जर्रात बाकी है। अब बारिश होती है तो वो सब आके बह के उसमें गिरते हैं। ये चौथा फिल्ट्रेशन हो रहा है। एक तो धूप, हवा, जमीन, 3 फिल्ट्रेशन हुआ। अब पानी उसको फिल्टर कर रहा है कि सैलाब का पानी में रोटेट होते 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 आके उसमें गिरा। और वो कुआं भी इतना बड़ा था, उसमें बहुत पानी है, बहुत पानी था। और शरीय एतबार से 500 लीटर से ऊपर कोई पानी और बहने वाला पानी हो तो वो पाक हो जाता। ये तो इतना बड़ा कुआं था जिसमें कम से कम उलमा लिखते मेजरमेंट करके कि कई हजार लीटर पानी की बात है। और वो तो निकल रहा है पानी। जब आप निकालते हैं, सेंचते, कुएं में गंदगियां गिर जाती पहले तो क्या करते थे, इतना पानी सेंचते सेंचते कि पूरी तरह से पाक हो जाए, क्योंकि पानी के रोटेशन से पाक होता है। इतना पाक होने के बाद अब बताओ इंसाफ के साथ, आज तो आप फिल्टर के पानी पीते हो भाई। आज से 50-100 साल पहले गांव देहात के लोग क्या करते थे? आज भी जो हम पी रहे हैं फिल्टर करके, कितने नदियों के पानी है और उन नदियों के पानी में क्या क्या डालते हैं भाई? अब वो तो धूप में, रोशनी में, हवा में कुछ भी फिल्टर नहीं हुआ, सूखा भी नहीं, बस सारे के सारे ले जाकर उसमें डालते हैं। उसका पानी भी पी रहा है, इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं? फिल्टर होने के बाद कर रहे हैं। तो खामा खामे एतराजात हैं ये। लेकिन ऐसी चीजों को हमें मालूम करना जरूरी है कि क्या इसका बैकग्राउंड है, कैसे डाला जाता। और ग्रामेटिकल एतबार से कोई इंसान लाके उसमें नहीं डालते थे। कि मुसलमान कितने गंदे हैं। इस्लाम ने पाकी सफाई को आधा ईमान कहा है। तहुरु शत्रुल ईमान। इस्लाम की पहली वही इक़रा, तो दूसरी वही वसियाबक फतहिर, और तुम अपने कपड़े को पाक साफ रखा करो। वो इस्लाम इतना गंदा नहीं है। दुनिया में किसी मजहब ने पाकी सफाई की उतनी तालीम नहीं दी जितने शरीयत इस्लामिया ने दी है। एक मिसाल देके बात आगे खत्म करके फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ाऊंगा। एक है नमाज। कितनी पाकी सफाई चाहिए। दुनिया की किसी मजहब की इबादत में, बुनियादी इबादत में आप दिखा दीजिए, नमाज के लिए सबसे पहले हमारा दिलो दिमाग पाक हो। किससे? शिर्क, बिदात, खुराफानी, रियाकारी, है ना, रियाकारी से पाक हो। फिर उसके बाद हमारा जिस्म पाक हो। जिस्म नजासत से, गंदगी से, हदस से अकबर, हदस से असगर से पाक हो। पेशाब, पाखाना और जनाबत से पाक हो। कपड़ा पाक हो, कपड़ा पाक हो। फिर वो जगह पाक हो। अल्लाह अकबर। इतनी पाकी के बावजूद वुजू नहीं किए, नमाज होगी? फिर वुजू बनाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह बिहम्दिही। दुनिया के किसी मजहब की इबादत में दिखा दीजिए इतनी पाकी सफाई का एहतमाम होता है कि नमाज के लिए आपको कितनी पाकी सफाई का एहतमाम। इनमें से एक चीज नापाक हो, आपकी नमाज नहीं होगी। कुर्बानी में कहा कि जानवर अगर सिंग टूटी हुई है, कान कटी हुई है, लंगड़ा है, लूला है, बीमार है, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। बहुत एकदम पाक साफ देना है। ज़कात में कहा कि बेकार और फालतू माल को नहीं देना है, बल्कि अच्छी से अच्छी चीजों को दिया करना है। अल्लाह अकबर। हर चीज में पाकी सफाई, उम्दगी का ख्याल रखा गया। इनमें से एक चीज नापाक हो, आपका जिस्म पाक है, दिलो दिमाग पाक है, जगह पाक है, सब कुछ पाक है, आपका कपड़ा गंदा है, नमाज होगी? अल्लाह अकबर। आपने वुजू नहीं किया, नमाज होगी? नहीं होगी।
ये है इस्लाम। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि इतनी गंदी बातों की तालीम दिया करें। इंशाल्लाह बातें और भी आती रहेंगी। हमारी बात बाकी है, अधूरी है। थोड़ा सा मैं डाइवर्ट, एक चीज याद आ गई तो बीच में बता दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कायनात में इंसान नहीं देखा, ये मैं आपको साबित कर रहा हूं। इंशाल्लाह बातें आगे आएगी। दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको वाकई माने में इन बातों को समझने, सारी दुनिया वालों को समझने और आखिरी नबी की इत्तिबा और पैरवी की तौफीक अता फरमाए, जिसमें हर एक की नजात है। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।